This is dispersion second part. So we are wanting to see first thing, find coefficient of mean deviation. Coefficient of mean deviation. About, that has to be mentioned. About what? ये बोलना पड़ेगा. About mean. For 1, 2, 3 up to n. 9 up to 9. Now how to do this question? So in order to solve this question, we require one thing, that is values are x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The total is 45. So x bar is 45 by 9, that is 5. Actually 5 is the middle, that will be the mean in this case because all numbers are consecutive number. Now x minus x bar with positive sign. X minus x bar means x minus 5, that is minus 4. We will take 4, 3, 2, 1 because 4 minus 5 is 1, minus 1. Then 0, 1, 2, 3, 4. This total is 20. So mean deviation of x bar is 20 by 9 because there are 9 data, x minus x bar by n. Now we require coefficient of mean deviation. Coefficient of mean deviation will be mean deviation by mean into 100. So that will be mean deviation, we are getting 20 by 9, mean was 5 into 100. So after cancelling, we are getting 400 by 9. This is the answer for this question. Now, this type of questions we can get. Now some special idea for standard deviation. We have seen the formula already that standard deviation is the best measurement of dispersion. There we have seen this idea, this question. If sum of squares of deviation, about mean is equal to 160 for a set of 10 data with mean as 50, find coefficient of variation, means CV. This question what we are trying, coefficient of variation means CV. First thing, what is that sum of squares of deviation, that is x minus x bar, sum of square. X minus x bar, that is deviation about mean square, and that is 160, and number of data is 10, and x bar, that mean is 50. First thing you need SD. SD is this value 160. This formula is sum of squares of deviation by n under root. So what you are getting, 160 by 10 under root is 4. Therefore, now you have coefficient of variation is SD means 4 by 50 into 100, that is 8%, we can say, but if it is not percentage in the answer, we will take 8 only. Now the next point. There are two very special type of questions we want to discuss, very special. First point is the idea of for first n natural numbers, SD is a special formula. This is a formula for n natural numbers. What is natural number? 1, 2, 3, 4, that counting numbers. N square minus 1 by 12. 12 is itself in the formula. So for n natural numbers, the standard deviation SD will be this one. So if I ask you variance, then that will be
SD square, that means this n square minus 1 by 12 without the root. So what is the concept? Find SD of first 7 natural numbers. We can do with the normal idea, but since it is clearly mentioning that find SD of first 7 natural numbers, that means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the set of numbers. That means the number n is 7 and all are naturally coming. So formula will be SD will be root over n square, that is 7 square 49 minus 1 by 12. 12 is the part of the formula, that is 48 by 12, 4, and hence the answer is 2. So standard deviation of first n natural numbers will be found in this way. Now the next idea of this dispersion portion which I am discussing is a very important point. For two values, any two values like a and b, SD will be always a minus b by 2 without negative sign. You will be telling this is for main division. No, in this case for two values we have this special idea can be applied, and a minus b, the difference of the two numbers without the negative sign, by 2. But mean of the two numbers is always a plus b by 2. That is a normal process. So if I tell you find SD of 3 and 19, what is the SD between the two numbers? Then your answer will be SD will be 3 minus 90 will be negative. So I'll take 19 minus 3 by 2 because I have to take a positive answer, and that is 16 by 2, 8. So 8 is the answer. It's a very simple task. Only divide the number difference of the two numbers by 2. So standard deviation between two numbers, always we get the difference of the two numbers divided by 2. So if I ask you what is the mean of these two numbers, or find a CV also. CV, like if I have two numbers, find coefficient of variation of 4 and 14. So very simple task. First you find SD. 14 minus 4 by 2, which is 5. And mean is 14 plus 4 by 2, which is 9. Therefore, coefficient of variation, which is obviously the SD by the measurement will be SD by mean into 100. Here it will be 5 by 9 into 100. That means 55.55%. 55.55%. 5 by 100. You have to find out 500 by 9. Then 5 by 9 into 100. That is obviously 55.5556 we can take. Okay. Now these two special formulas we must remember. Now you must remember one more point. For two values we use this one. Even if you have more than two values but same, means find SD of 3, 11, 3, 11, 11, 11, 11, 3, 3, 3. So in this case, what you are finding, two values actually are there. Here you are finding two values with same occurrences, 3 5 times and 11 also 5 times. So 3 and 11 are occurring same number of times. Same number of times means both have the same occurrences, the frequencies we say, same number of times. So this is a very special situation when two values are actually observed. No other values we are finding.
हम लोग इसमें देख रहे हैं दो ही वैल्यू है, दो वैल्यू है माने 3 और 11 ही है, 3 है 11 है, 3 है 11 है, ऐसे करके 3 5 बार है, 11 भी 5 बार है। लेकिन इसमें 3 अगर 4 बार होता और 11 अगर 6 बार होता या कुछ और होता तो ऐसे नहीं सोचते। कैसे कि एस डी तो अभी हम लोग बताए कि दो नंबर का डिफरेंस माने 11 माइनस 3/2, तो इसमें वो नहीं देखना होगा कि फ्रीक्वेंसीज क्या है, ऑकरेंसेस को नहीं देखना है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस अगर होता है, सेम वैल्यू सेम नंबर ऑफ ऑकरेंसेस मीन्स अगर 3 5 बार आया और 11 भी 5 बार ही आया है तो दो ही वैल्यू है, दो वैल्यू का एस डी निकालना बहुत आसान है, दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दे एस डी आ जाएगा। तो लेकिन इसमें अगर 11 और 3 अलग अलग नंबर ऑफ ऑकरेंसेस होता तो तुमको पूरा लाइन से करना पड़ता। वैसा क्वेश्चन तो बेकार क्वेश्चन है, वैसा तो हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं करते और देना भी नहीं, देते भी नहीं। सो दिस इज a question which we need to know. Now we have a special type, this dispersion, that is change of scale and origin. We consider this idea with some equation first. स्केल एंड ओरिजिन कैसे डिसाइड करते हैं? देखो, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, y का वैल्यू a और b के साथ x का कनेक्ट करते, देन y का मीन ऑफ y कैसे किए थे हम लोग? सेंट्रल टेंडेंसी में किए थे a प्लस बी इंटू एक्स बार, माने x का मीन बैठा दो, y का मीन आ जाएगा। y का मीन होगा जस्ट x का मीन इस इक्वेशन में बैठा दो। इस इक्वेशन को अगर हम लोग देख के x का मीन मालूम है तो y का मीन उसमें से निकल जाएगा, x के जगह x का मीन बैठा दो। नॉट ओनली दैट, मीडियन ऑफ y भी वैसे ही निकलेगा, a प्लस बी इंटू मीडियन ऑफ x। फिर मोड ऑफ y भी वैसे ही निकलेगा, a प्लस बी मोड ऑफ x। मोड ऑफ x मतलब x का मोड जो है वो वहां पर बैठा दो। तो इसका मतलब है इक्वेशन रहने से, मीन मीडियन मोड इक्वेशन का वैल्यू में पुट करने से x के जगह y का मीन मीडियन मोड कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये बात हम लोग डिस्पर्शन में नहीं देखेंगे, डिस्पर्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? ये सेंट्रल टेंडेंसी का सेकेंड आइडिया है कि डिस्पर्स कितना है, तो वो a को देखेंगे नहीं, b x को देखेंगे, माने x को देखते हैं। माने हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ y अगर निकालना है तो खाली b इंटू रेंज ऑफ x ये निकाल लो, ये पुट कर दो। माने x का रेंज अगर मालूम है तो b के साथ x का जो वैल्यू है वो उसमें पुट कर दो। वो जो a है उसमें हम लोग वो इग्नोर कर देंगे, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं होगा। याद रखना है, मीन मीडियन मोड जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन रेंज QD माने क्वार्टाइल डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन माने SD, और मीन डिविएशन MD, सब में एक ही रूल है। क्या रूल है? B इंटू QD ऑफ x। तो x का क्वार्टाइल डिविएशन अगर तुमको मालूम है तो वो इक्वेशन में पुट कर दो, लेकिन वो पूरा इक्वेशन नहीं लेंगे, खाली x का वैल्यू लेंगे। सेम इज मीन डिविएशन ऑफ y, b इंटू मीन डिविएशन ऑफ x में पुट कर दो, और स्टैंडर्ड डिविएशन भी वैसे ही होगा, b इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। मतलब ये जो पूरा डिस्कशन है, ये डिस्कशन का माने है कि हम लोग a और b को देखते हैं, x के साथ b है और जो x नहीं है वो a है, तो हम लोग रेंज QD MD SD में a का कोई भी आइडिया नहीं चाहिए, a को इग्नोर कर दो। मतलब जैसे देखो, y इज इक्वल टू दिया हुआ है 50 माइनस 3x एंड रेंज ऑफ x दे दिए, रेंज ऑफ x दे दिए 4। फाइंड रेंज ऑफ y, RY माने रेंज ऑफ y। तो तुमको वो 50 देखना नहीं है, 50 इज a और 3 इज b, माइनस 3 इज b रादर। तो हम लोग रेंज ऑफ y निकालेंगे, 3 माइनस जो है उसके साथ रेंज ऑफ x, लेकिन ये माइनस नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग नेगेटिव डिस्पर्शन को एब्सोल्यूट में देखते हैं, वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो 3 रह जाएगा और रेंज ऑफ x इज 4, 12 हो जाएगा। तो काम क्या करना है? सब में एक ही बात है, सब में एक ही आइडिया है, इक्वेशन दे देंगे। मीन मीडियन मोड में तो कुछ उतना है नहीं, खाली वो इक्वेशन के जगह पुट कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन SD MD QD रेंज 4 मेजरमेंट में, जैसे y इज इक्वल टू 15 माइनस 7x एंड
QD ऑफ x इज 1, फाइंड QD ऑफ y। बहुत आसान सा काम है, अगर तुम थोड़ा पेशेंस से करोगे, थोड़ा समझ के करोगे कि यहाँ पर 15 का कोई काम नहीं है क्योंकि उसमें x है नहीं, तो हमको QD ऑफ y जो देखना है वो 7x को देखना है और वो -7 है और उसके साथ QD ऑफ x माने x की जगह क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x पुट कर दिए, लेकिन माइनस नहीं होता है, 7 इंटू 1 आंसर 7 हो गया। तो 15 को देखेंगे नहीं, यही है डिस्पर्शन का रूल, उसमें चेंज नहीं होगा। क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन जो भी है सब में एक ही रूल अप्लाई होगा। तो जैसे ये बोल रहे हैं कि मीन डेविएशन ऑफ x दे दिए 2 एंड थोड़ा ये देख के करोगे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू ये 20 मान लेते, MD ऑफ x इज 20 इज 70, फाइंड MD ऑफ y। तो इसको थोड़ा केयरफुली नोट करना है, क्यों, इसमें क्या स्पेशलिटी है, थोड़ा सा पेशेंस लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन को थोड़ा इधर उधर करके दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, MD ऑफ x 20 है और इक्वेशन को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके दे दिया, मतलब ये जो 5y है ये है 70 माइनस 2x। क्यों, ये 2x को उस तरफ लाना होगा, फिर y का वैल्यू 5 से डिवाइड करना होगा। हमको तो पहले इक्वेशन को सजाना होगा ना, a प्लस बी एक्स जैसे बोल रहे थे, तो 5 से डिवाइड किए तो 70 को 5 से डिवाइड करेंगे और 2 को 5 से डिवाइड करेंगे x के साथ, तो ये y हो गया 14 माइनस 2/5x। अब हमको MD ऑफ y निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 14 का कोई इंटरेस्ट हम लोग का नहीं है, हम लोग का इंटरेस्ट है x के लिए। x का मीन डेविएशन मालूम है 20, तो हम लोग क्या करेंगे -2/5 इंटू 2/5 इंटू MD ऑफ x। MD ऑफ x क्वेश्चन में है, MD ऑफ x क्वेश्चन में है तो वो साइन हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, तो ये 2 इंटू MD ऑफ x का वैल्यू मालूम है 5, 2/5 इंटू MD ऑफ x मालूम है 20, तो आंसर हो जाएगा 8। तो ये हो गया मीन डेविएशन ऑफ y कैसे निकलेगा इक्वेशन को देख के। तो इक्वेशन रहने से इक्वेशन को पहले y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ऐसा फॉर्म में ले आएंगे, माने y को अलग करके लिख लेंगे, फिर जो x का पोर्शन है उसमें पुट कर दो MD QD HD जो भी है। जैसे ये बोले कि भाई 3x प्लस 7y इज इक्वल टू है 18 एंड वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 49, फाइंड वेरिएंस ऑफ y। एक बात याद रखो, वेरिएंस का कोई भी आइडिया हम लोग का चैप्टर में है नहीं। किसका आइडिया है, QD HD MD रेंज, तो वेरिएंस तो है ना, हम लोग देखे थे नहीं, HD देखे थे, वेरिएंस उसके साथ लिंक्ड है। क्या है, लिंक्ड है, माने SD ऑफ x क्या है, रूट ओवर वेरिएंस x, क्योंकि वेरिएंस को हम लोग SD में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑलवेज वेरिएंस को SD में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग जो भी मेजरमेंट करते हैं SD MD QD रेंज के हिसाब से। ठीक है, ओके, ये SD ऑफ x मिल गया 7, पहले ये कर लिए हम लोग, SD से ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस का कोई डायरेक्ट ये नहीं है, SD का कॉन्सेप्ट है। अब देखो 3x प्लस 7y इज इक्वल टू है 18, तो इसको थोड़ा सजा के लिखना होगा। क्या सजाएंगे, अलग से y को अलग करना होगा ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स बोल रहे थे, 18 माइनस 3x, x को अलग कर दो, उधर ले आओ, अब तो y हो जाएगा 18 माइनस 3x को 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 18 को 7 से डिवाइड किए, 3 को भी 7 से डिवाइड किए, तो ये हो गया तुम्हारा y। अब हमको देखना है SD ऑफ y क्या है, क्योंकि हमको SD ऑफ y देख के वेरिएंस ऑफ y कैलकुलेट करना है। पहले SD निकालना पड़ता है, फिर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। तो SD ऑफ y क्या होगा, ये 18/7 को देखेंगे नहीं क्योंकि उसमें x है नहीं, तो -3/7, 3/7 माइनस है, इंटू SD ऑफ x 7 है, इसका मॉड साइन है, नेगेटिव साइन हटा दो, तो आंसर 3। लेकिन ये आंसर नहीं है, ये तो आंसर 3 आया SD ऑफ y। हमको वेरिएंस ऑफ y चाहिए, याद रखो वेरिएंस कभी डायरेक्ट निकलेगा नहीं, SD निकाल के, SD स्क्वायर इज वेरिएंस, सो आंसर होगा 9, SD स्क्वायर दैट इज 9। तो ऐसे करके हम लोग ये निकाले। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
इस टॉपिक के अंदर दो पॉइंट हम लोग देखे। एक पॉइंट देखे कि इक्वेशन रहने से हम लोग उसमें एस डी एम डी क्यू डी रेंज एक्स के साथ बैठा देंगे तो वाई का निकल जाएगा, लेकिन वो अलग पार्ट जो एक्स नहीं है उसको देखते नहीं है, लेकिन मीन मीडियन मोड में पूरा देखते हैं। मतलब अगर दिया हुआ है कि वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 70 एंड एक्स का मीन दिया हुआ है, मीन ऑफ एक्स माने एक्स बार इज 15, एच डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा 1, फाइंड CV कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। x का मीन दे दिए लेकिन y का मीन नहीं दिए, एच डी ऑफ एक्स दे दिए लेकिन एच डी ऑफ वाई नहीं दिए, इक्वेशन दे दिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y के बारे में सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि ये कैसे होता है, एच डी ऑफ वाई बाई मीन ऑफ y। क्यों? क्योंकि एच डी बाई मीन इंटू 100 इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, बट y के लिए देखना होगा। तो एच डी ऑफ वाई और मीन ऑफ वाई देखेंगे। पहले हम लोग इस इक्वेशन को देख लेंगे कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 70। तो x का मीन हम लोग को मालूम है, तो y का मीन कैसे निकलेगा, y बार। x के जगह x का मीन बैठा दो, पूरा इक्वेशन लेना पड़ेगा। x के जगह x का मीन है 15 प्लस 70, तो ये हो गया 115। तो 115 है तुम्हारा y का मीन, क्योंकि x के जगह हम लोग 15 बैठा दी। ये पूरा मीन मीडियन मोड में यही रूल था, वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। मीन मीडियन मोड के लिए पूरा इक्वेशन को लेना है। अभी 115 आ गया, अब हमको देखना है एच डी ऑफ वाई क्या होगा। तो y तो था 3x प्लस 70, हम लोग जब एच डी ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे तब वो 70 को नहीं देखेंगे क्योंकि हमको x देखना है। तो x का वैल्यू 3 से मल्टीप्लाइड है, तो 3 इंटू एच डी ऑफ एक्स, इसका नेगेटिव साइन नहीं लेना है। तो 3 इंटू यहाँ पर एच डी ऑफ एक्स 1, तो आंसर 3 हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा एच डी ऑफ वाई। अब हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई निकालना है। तो वाई निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ वाई कैसे निकलेगा, तो ऊपर में 3, नीचे 115 इंटू 100, 3 बाई 115 इंटू 3 बाई 115 इंटू 100, तो वो हो गया 3 बाई 115 करके जो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2.61 के आसपास होगा। तो ये हो गया तुम्हारा CV ऑफ वाई, वाई का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, तो ये 2.61 के आसपास। नाउ दिस इज द आइडिया ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन दे दिए वहां से। एक्चुअली इसको क्या समझते हैं हम लोग, इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब है ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये एक्चुअली चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन। कैसे है स्केल एंड ओरिजिन? ये y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स जो बोलते, a जो है x नहीं है, ओरिजिन चेंज है, और b जो है जिसको x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है वो है स्केल का चेंज। तो जो x के साथ नंबर मल्टीप्लाइड है वो स्केल चेंज, और जो x नहीं है उसको बोलते हैं ओरिजिन चेंज। असल में ये जो डिस्पर्शन है, तो एच डी एम डी क्यू डी रेंज, एच डी रेंज मैंने रेंज, क्यू डी, एच डी और एम डी चारों में, एंड एच डी आर नेवर changed due to addition or subtraction with same number, addition or subtraction with same number, माने सब डेटा में अगर सेम नंबर ऐड करो, अगर सब डेटा में सेम नंबर ऐड करोगे तो एच डी एम डी क्यू डी रेंज चेंज नहीं होगा, क्योंकि ओरिजिन का कोई असर नहीं पड़ता है। ओरिजिन हैज नो इफेक्ट। ये ओरिजिन चेंज का रूल है कि ओरिजिन चेंज करते माने बोलते कि वैल्यू जो है उसको थोड़ा प्लस कर दो, बढ़ा दो, सब वैल्यूज को जितना एक्स है, जितना एक्स माने वैल्यूज है, सबको सेम नंबर से बढ़ाओगे या घटाओगे तो वो ओरिजिन चेंज हो जाता है बोलते हैं हम लोग। तो ये आइडिया जो करते हैं कि सब वैल्यूज में भाई 3 ऐड कर दो, तो एच डी था 2, अब क्या होगा 3 था, अब सब में 2 ऐड करेंगे बोल के एच डी 5 नहीं होगा, एच डी 3 ही रहेगा। एच डी एम डी क्यू डी रेंज ये सब में अगर ऐड करते हैं एंड सब डेटा में, डेटा माने फिगर्स में, तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये है ओरिजिन चेंज से इंडिफरेंट रहता है, माने इंडिफरेंट माने चेंज नहीं होता है। किसका? एच डी एम डी क्यू डी रेंज माने पूरा डिस्पर्शन का। अब इफ ऑल वैल्यूज आर मल्टीप्लाइड
सब वैल्यूज में अगर मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय सेम नंबर, सब वैल्यूज में अगर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड विथ सेम नंबर, सब नंबर्स को, सब फिगर्स को अगर सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे नंबर, देन रेंज एच डी क्यू डी जो भी है, इस पूरा टॉपिक का जो है क्यू डी एम डी एंड एच डी विल नॉट बी चेंज्ड, बोल नहीं सकते इसमें चेंज होगा। एच डी विल बी अकॉर्डिंगली चेंज्ड, माने वैसा ही चेंज होगा जैसे तुम कर रहे हो, माने अकॉर्डिंगली, माने जैसे तुम मानो 3 से मल्टीप्लाई किए तो सब डेटा में 3 मल्टीप्लाई किए तो एच डी भी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बट नेगेटिव आंसर नहीं होता है। ये स्केल चेंज, स्केल चेंज क्या है, अगर सब नंबर्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो उसके लिए एच डी एम डी क्यू डी रेंज सबका चेंज होगा। नोट करके बताना पड़ेगा कि इसमें एक नोट है, क्या नोट है, एक पॉइंट टू बी नोटेड, एक पॉइंट है नोट करने का कि स्केल चेंज करने से, ड्यू टू स्केल चेंज, ड्यू टू नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन विथ ऑल डेटा या डिवाइड, नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, SDMD QD range will not be negative, will be always positive, will be not negative। माने इसका मतलब क्या हुआ, अगर सब नंबर्स में सम नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो SDMD QD रेंज कैनॉट बी नेगेटिव, इट विल बी अकॉर्डिंगली डिवाइड और मल्टीप्लाइड, बट नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये टॉपिक ही है डिस्पर्शन। एब्सोल्युटली देखते हैं, माने जैसे क्वेश्चन देखो, इफ ऑल डेटा आर मल्टीप्लाइड, if all data are multiplied with -5, then SD or MD or QD or range will be, 4 ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई -5 क्योंकि सब नंबर्स में -5 मल्टीप्लाई किए, सेकेंड ऑप्शन नो चेंज, थर्ड ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई +5 एंड फोर्थ ऑप्शन डिवाइडेड बाई +5। तो ये क्या बोले क्वेश्चन को आप गौर से देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, क्वेश्चन को बहुत गौर से देखोगे, इसको तुम लोग केयरफुली नोट करो। इफ ऑल डेटा आर मल्टीप्लाइड विथ -5 देन SDMD QD रेंज विल बी, 4 ऑप्शन, -5 से मल्टीप्लाई करना होगा, कोई चेंज नहीं होगा, या मल्टीप्लाई होगा +5 से या डिवाइड हो जाएगा +5 से, तो ये सी होगा क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किए, नो -5 से मल्टीप्लाई किए, तो भी हम लोग -5 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर -5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, +5 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं होता है। तो ये आइडिया को हम लोग स्केल चेंज बोलते हैं, जिसके अंदर ये समझना होगा कि जब कोई भी डेटा, सब डेटा में सेम नंबर मल्टीप्लाई करते तो वो आंसर में सेम नंबर मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव छोड़ के पॉजिटिव आंसर आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा इवन इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद नेगेटिव साइन। तो ये कॉन्सेप्ट था कि QD MD HD रेंज, ये डिस्पर्शन का जो मेजरमेंट है, ये सब स्केल चेंज मल्टीप्लाई डिवीजन के लिए चेंज होगा अकॉर्डिंगली, जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव नंबर हटा देंगे और ऐड करोगे, कुछ भी ऐड करोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन SDMD QD रेंज डिस्पर्शन था, मीन मीडियन मोड में है वैसा नहीं होता, मीन मीडियन मोड में जैसे मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, जैसे ऐड करोगे वैसे ही ऐड होगा, उसमें चेंज होता है क्योंकि वो सेंटर है, सेंटर बढ़ेगा घटेगा जैसे तुम प्लस माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो वो हम इक्वेशन से क्या बताए, वो उसका ही एक अलग आइडियाज को हम लोग इक्वेशन में देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट।
So that is the idea of dispersion.